ہر ایک کے لیے دنیا میں خوشی ہوتے ہے، ہمارے سے آدھا خوشی چھینا ہوا ہے کیونکہ بھائیوں سے جدا ہو گیا، اس کے بعد ماں باپ ان کا ساتھ ان سے بھی جدا ہو گیا۔ تو السلام علیکم، ویلکم بیک گائز۔ تو اس وقت میں موجود ہوں جی فرانو گاؤں میں، اور آپ کو آج ملوا رہا ہوں جی شیر محمد فرانو گاؤں کا ہے، اور ان کے کچھ بھائی جو ہے نا انڈیا میں ہیں، تو ان سے بھی ملواتے ہیں۔ باقی بہترین کھلاڑی بھی ہے، آئیے ان کی زبانی انہی سے سنتے ہیں۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے میں ادھر ویڈیو سننے والے اور دیکھنے والے سب کو السلام علیکم۔ اس کے بعد اچھا اس بھائی کا شکریہ سلطر آخری گاؤں سے ادھر آ کے ہمارے پاس ٹیم نکال کے اس وقت کی ٹیم کا تو اب سب جانتے ہیں کتنا اہمیت ہے اور اتنا قیمتی ہے، پھر بھی اس بھائی نے اس سردیوں میں خصوصاً دسمبر کا آخری سردی، اس وقت سردی کا تو سمجھ لو کہ یہ آخری جوان 18 سال کی، تو اس دن میں ادھر آ کے میرے پاس آخری گاؤں بارڈر پر آ کے ہمارے دکھ سکھ میں شریک ہونا، اور ہمارا بھائی 1971 سے اس گاؤں میں سے 71 سے جدا ہوا، اب تک ملاقات نہیں ہوا۔ 2014 میں بڑا بھائی علی محمد گوبا کے نام سے پکارتا شاید، اس کو بھی کافی ویڈیو ہے آپ لوگ سب دیکھتا ہو۔ وہ 1971 سے جدا ہوا تھا، اور وہ 2014 کے بعد 45 سال کے بعد ہمارا ایک دفعہ ملاقات ہو گیا بڑا بھائی سے۔ چھوٹا بھائی احمد شاہ، اس سے اب تک ملاقات نہیں ہوا ہے، ویڈیو اور یہ فلم کے ذریعے کبھی بات ہوتا ہے۔ تو ہماری سن کے اس بھائی نے آپ کو 2 بھائی آ گئے ہیں، تو ہم آپ سے تو ذرا انٹرویو لیں گے۔ اس لیے نہ میں عالم ہوں، نہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، نہ بولنے کی عادت ہے، نہ پڑھنے کی عادت ہے، نہ سمجھنے کی عادت ہے، تو بس بھائی ہم نے ادھر کچھ آپ جو بھی بتاؤ تو میں آپ کے سامنے ادھر حاضر ہوں، ناچیز بندہ آپ کی خدمت میں۔ اس میں غلطی ہوتا ہی ہو، آپ سب سے میں معذرت چاہتا ہوں، اور ہمارا یہی حالت ہے 1971 میں اچھا مہاجر ہو کے ادھر آیا، بسا ہوا ہم اس گاؤں کا بہت مشکور ممنون، اپنے بیٹے سے عزیز کے طرح ہمیں پالا، ہمیں ان سے خدمت کیا، کھایا پیا۔ اس وقت اللہ کے فضل سے ہمیں ادھر اپنا مکان میں بیٹھا ہوا ہوں۔ اس گاؤں والوں کو بھی بہت شکریہ اور ممنون۔ اس کے بعد علاقہ چھروٹ میں بہت سے جانتا ہوں، ان سب کو بھی مشکور ہوں۔ اس کے بعد ضلع گانشے میں بھی ہمارا بہت تعلق ہے، ضلع گانشے کا بھی، اور آگے چترو گوما سے لے کے دمسم تک، آگے تھلے روندو کھرما آخری سائڈ تک ہمارا پہچان، ان سب کا ہم مشکور ہوں۔ پہلا جنگ میں ہمیں جدا ہو گیا ہمارا بھائی، اور سب سے پہلے ہمارا بھائی بھی تمناؤں سے سنتا ہے، ہمارے یہ ٹی وی دیکھتے ہیں، اور لداخ کرگل دو تھنگ ٹیکسی تو سارے عوام کو ڈبل ہاتھ جوڑ کے ہمارے طرف سے سلام بھائی اور احمد شاہ، خصوصاً بھائی دونوں اور گھر کے افراد کو بہت بہت سلام۔ اس آج نہیں بول سکتے کیونکہ دل دکھی ہوتا ہے، ہر ایک کے لیے دنیا میں خوشی ہوتے ہیں، ہمارے سے آدھا خوشی چھینا ہوا ہے کیونکہ بھائیوں سے جدا ہو گیا، اس کے بعد ماں باپ ان کا ساتھ ان سے بھی جدا ہو گیا، تو اس سے زیادہ ہم آگے ان کو یادوں میں نہیں بول سکتے ہیں۔ کا جو بھائی ہے اس طرف، ان کا کیا نام ہے دونوں بھائیوں کا؟ بڑا بھائی کا محمد علی گوبا نام سے پکارتے ہیں، دوسرا احمد شاہ ہے۔ اور والدہ صاحبہ بھی ادھر تھی؟ والد والدہ دونوں یہاں تھا ادھر۔ والدہ صاحب 2019 میں وفات پایا، والد مرحوم 2023 میں وفات پایا، رمضان کی آخری شب قدر کی تھی۔ ادھر ہمارے گود میں ہی دونوں وفات پایا۔ تو وہاں سے کوئی بھائی وغیرہ ادھر آئے تھے؟ بس اس کا میں نے اس سے پہلے بھی ٹی وی سماہر میں دیا ہے۔ ادھر ہمارا خالصان اس اوپر ہمارا 45 ایسے ہے، ایسے 45 جس کا بیٹا ادھر ہے، جس کی بیٹی ادھر ہے، جس کا خاوان ادھر ہے، جس کا شوہر ادھر ہے، یا قبر کسی میں نہیں پہنچ سکتا۔ صرف ہفتے کے بعد ان کو ٹی وی اور ہم نے فون پہ بتانے کے ان کو چہرہ نہیں ہے۔ بس اب تک ہمارا نہ خوشی ہو نہ دکھ ہو، نہ بھائی آ سکتے ہیں نہ پہنچ سکتے ہیں۔ اب اس موقع میں ہمارا ڈبل دکھ ہوتا ہے، پہلے دکھ کے اوپر پھر دکھ ہوتا ہے، تو یہی واقعہ ہے ہمارا۔ اور اصل آپ بتائیں تو مجھے بولنا پڑتا ہے، ان کا جدائی کی وجہ سے میں ان پڑھ ہو گیا۔ میں ان پڑھ ہونے کی پہلا مقصد ان کا جدائی۔ ماں باپ کے لیے ایک کا 7 سال تھا، ایک کا 3 سال تھا، جیسے ملک نے وہ اپنے بچے گود میں
से निकाल के छोड़ा, जैसे रख के आ गया। तो यहाँ आके पार मुझे इतना उन्होंने प्यार करता था, घर से भी बाहर हो गया और रोता था। इधर से उस वक़्त ठंड में प्राइमरी स्कूल था, प्राइमरी हद तक मैंने पढ़ा। उसके बाद हमारे शिक्षा महाई स्कूल था, शिक्षा नहीं भेज दिया, कहीं नहीं भेज दिया। उनके दुख की वजह से मुझे इतना प्यार के रोता था, कहीं जाना नहीं है, कहीं जाना नहीं है। क्योंकि वो पहले उनका दुख था ना, वो दिल से जुदा हुआ था ना, उसकी वजह से माँ बाप दोनों इतना मुझे बिल्कुल यहाँ से छोड़ता भी नहीं था। नहीं तो मैं चलो अभी आपको पता माशाल्लाह है, अभी माशाल्लाह से काका आपका उम्र क्या हो रहा है? हमारी उम्र अभी तकरीबन कोई 40-45-50 साल तो होता है। 50 साल में आपके भाई कितनी दफा आपसे मिलने आए हैं? एक दफा, जो सिर्फ एक भाई, वो बड़ा भाई 2014 में एक दफा आके तारीफ नंबर 5-6 महीना बैठा है। अभी उससे पहले मुलाकात छोटा भाई से हुआ भी नहीं अब तक। कभी आपने उस तरफ जाने का सोचा है, बस पहुंचता नहीं है तकदीर। ना पहुंचने की वजह क्या है? ना पहुंचने की वजह बस उधर वीजा नहीं मिलते है। अच्छा, बस ये हुकूमत दोनों का आपको पता, हम क्या बता सकते हैं उसके बारे में। तो वहाँ से जब भाई आए थे वो कैसे आए थे? वीजे के जरिए आए थे? वीजे के जरिए वाघा बॉर्डर से आया था। वाघा बॉर्डर, यहाँ से अगर रास्ता खुला होता तो कितनी देर का रास्ता है? क्या बताऊं, इधर आधा घंटे का रास्ता है। बस स्पीड गया तो आधा घंटा, नॉर्मल गया तो अच्छा घंटे का रास्ता है। टोटल 5 किलोमीटर है। हमारे इस छत के ऊपर से हमारा भाई की छत के ऊपर तक 5 किलोमीटर है। सिर्फ 5 किलोमीटर है? 5 किलोमीटर है, आधा घंटा, बस ज्यादा समझ लो 1 घंटे का कम है। मतलब जिस वक्त आपका भाई आए थे वो वाघा बॉर्डर से आए थे? हाँ। तो वाघा बॉर्डर से यहाँ पहुँचने में कितने दिन लगे थे? वाघा बॉर्डर से इधर आने तक वो 2 दिन से आगे लद्दाख 2 दिन, जो लद्दाख से वो दिल्ली आ गया, दिल्ली में 3 दिन, दिल्ली से लाहौर 2 दिन, 7 दिन, लाहौर से इधर इस्लामाबाद तक 1 दिन, जो उसके बाद ये बाई रोड आ गया स्कार्दो में 2 दिन, स्कार्दो से 1 दिन, 12 दिन में हम इस हुकूमत दोनों को, खुसूसन पहले भी मैंने कई वीडियो में अपील कर के थका हूँ, और वज़ीर आज़म को, खुसूसन हमारे वज़ीर आज़म को रिक्वेस्ट है, आपका भी भाई होंगे, आपका भी बहन होंगे, आपका भी दिल होंगे, आपका भी आँख होंगे, क्योंकि और इधर हुकूमत दोनों, उधर हुकूमत हिंद के भी वज़ीर आज़म को रिक्वेस्ट, आपको कोई भाई होंगे, आपका भी बहन बेटा होंगे, और आपका बेटा एक शहर से दूसरे शहर में होने से आपको क्या दुख होता है, और हमारा दुख अब तक देखो 55 साल में भाई माँ बहन और बेटा है, किसी का बेटा इधर है, किसी का भाई उधर है, किसी का माँ इधर है, किसी का बाप इधर, किसी का भाई इधर, किसी के बहन उधर। कितने लोग होंगे तकरीबन? इधर कोई 15 चूल्हे है जो हम, इसमें कोई घर नहीं है जिसका वहाँ भाई ना हो, यहाँ बहन ना हो। किसी का देखो शोहर उधर हूँ, इधर छोटा माँ औरत ने 3 बेवा है, जो 3 बेवा ने 7 बच्चे इधर पार अल्लाह के अभी बड़ा हुआ है, शादी हुआ, उनका बच्चा हो गया। देखो आप ये हुकूमत दोनों को यही रिक्वेस्ट है, खुदा के लिए आप भी दिल में हाथ रखें, हमारे इस दुख दर्द, इस जुदाई का आप इसका ख्याल रखें। ज़्यादा हम क्या कह सकते, वज़ीर आज़म दोनों के लिए खुसूसन अगर साल में भी एक दफ़ा हमारे मुलाकात करने की इजाज़त दे हुआ तो आप लोगों को बड़ी मशकूर और ममनून होंगे। ठीक है जी, शुक्रिया। और आपका टाइम लेके इधर आने पर दोबारा फिर आपसे मशकूर और ममनून हूँ, बड़ी मेहरबानी, आपका एन नवाजिश होंगे। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया काका। तो ये जी इनके 2 भाई उस तरफ है, वालिदा का इंतकाल इधर हुई है। तो मेरा भी पुरजोर अपील है जी हुकूमत पाकिस्तान से कि ये जो आधा घंटे का जो रास्ता है ना, इसको खोला जाए, या इसके कोई लाहे अमल ऐसे निकालें जिससे इनके भाइयों के आपस में मुलाकात हो, इनकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो। अभी देखें 45 साल अगर आप सोचें, अगर आपके भाई, आपकी बहन, अगर आपकी कोई रिश्तेदार इस तरह से आपसे जुदा हो, तो हमारे दिल से आपके लिए अपील है कि आप इसका कोई ना कोई हल निकालें। वो करगिल में ना सर, 1999 में करगिल में, इधर की क्या बात है सर, एक ही दिन के मैं आपको कहानी करूँगा, एक ही दिन में सुबह 350 गोला आ गया, जो एक ही दिन में सुबह सलाद से सुबह 8 बजे तक 350 गोले, उसमें हमारे 7 बंदे शहीद हुए, जो उसमें 42 मकान पे हिट हो गया, और कोई 47 घर पे जुज़वी नुकसान हुआ था। उसमें हमारा 7 बंदे उसी दिन शहीद हुए। 7 बंदे मैंने खुद देखा है। दो बंदे का जब वो बैठा हुआ था कहीं काम से आके थका हुआ, सामने लगा था, एक टंग उधर पहुंचा था, एक टंग इधर, हाथ उसका 7 टुकड़े हुआ था, जो मैंने खुद उनको क्लोज करके किया है। अब इसका कहानी क्या कर सकते हैं, जो उन्हें
बयान नहीं कर सकते, बयान नहीं कर सकते। बिल्कुल। हमारा अपना साहब मैंने तकरीबन उसमें कोई 14 साल शहीद हुआ जो हमारा 14 तकरीब, उसमें से 7 हमारा अपना सामने लगा शहीद। तो उसको क्या कहने, इधर कोई जगह नहीं है इस वक्त। हमें यह सफेदा आपको नज़र आते नहीं, ये काटते जो काट के मशीन पे ले गया तो मशीन वाले वो काटने के लिए तरसता है, क्योंकि काटते काटते बीच में वो शेल आते हैं तो आरी फाट जाते हैं। ये हर देखो ये सफेदा हर एक चीज़ के अंदर देखो ये सफेदा इसको जो दाग नज़र आते हैं ना, जो जी जी कट ये शेल का जगह है। देखो जो करते हैं उस सफेदे के भी देखो हर सफेदे में जो ये खुबानी उसके अंदर जो निशाना लगा हुआ वो शेल का निशाना है। इतना लगा, एक ही आप अंदाजा करो ना 350 गुड़ा एक ही दिन में आ गए। ठीक भी जंग करते वो यहाँ गाँव खाली नहीं किया जाए। यहाँ के बच्चे वगैरह तालीम के हवाले से भी कुछ कहिए भाई। यहाँ का तालीम बाहर नरमाल है सर। ये देखो हाई स्कूल आपको ऊपर नजर आता होगा, ये हाई स्कूल है, ये गिरल स्कूल है हमारा जी, ये गिरल स्कूल है। और तालीम के लिहाज से यहाँ आखिरी बॉर्डर जब भी होता है हमारे बल्तियों का मिसाल होता है ना, थांगे नहीं थांगा बल्कि मिसाल है ना, तो इस लिहाज से इतना तालीम के लिहाज से नहीं है। जो यह हुकूमत से अपील है यहाँ, क्योंकि सस्ती की वजह है या बॉर्डर के आखिरी जगह है, तो इतना तालीम के कोई रोशन नहीं है हमारे यहाँ। हॉस्पिटल है? हॉस्पिटल भी नहीं है। हाँ हॉस्पिटल है, यह हॉस्पिटल है देखो। अच्छा। इसमें हमारे ये हॉस्पिटल है, ये डिपो है। और ठीक हो गया जी। इस हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर वगैरह है? इस डॉक्टर नहीं है, सिर्फ 2-3 नर्सिंग है। बॉर्डर गाँव होने की वजह से यहाँ बंदे आते नहीं है, पोस्ट पे रखते हैं, इस पोस्ट पे होता है। हमारे यहाँ देखो 500 चूल्हे के अंदर इधर एक एलर्जी नहीं है। हमें इधर डिलीवरी केस के बहुत मसाइल होता है, यहाँ से खपुल जाना पड़ता है, स्कार्डो जाना पड़ता है। देखो ये एक क्लास का अस्पताल डिस्पेंसरी है, इसमें भर्ती हुआ है डॉक्टर भी सब कुछ, मगर इधर अमले नहीं है, सिर्फ 2 नर्सिंग है। बाहर देखो ना, आप देखो ना, इसको पोस्ट आया हुआ ये बड़ा एक क्लास अस्पताल है, इसके अंदर तो लाजिमी है ना डॉक्टर तो आया होगा मंजूरी तो होगा ना, इधर आया नहीं है बैठता। हमारी डिलीवरी खुसूसन आपको पता है डिलीवरी के इसके लिए बहुत मसाइल, हम डायरेक्ट कर दो जानना पड़ता है, इसके लिए बहुत मसाइल है। और क्या मसाइल है जी आपके गाँव के? बहुत है सर, क्या बताऊँ। देखो वेटरनरी हमारे यहाँ सबसे इस गाँव का माल मवेशी के लिहाज से सबसे ये छोरबट का ये समझ लो कि गांचे में सबसे यहाँ माल मवेशी आप नजर आते देखो ना, इस सर्दी में भी ये इतना माल मवेशी छोड़ा हुआ है देखो। बिल्कुल है। इसमें हमारे यहाँ कम से कम 1000 की तादाद में यकयामो होंगे, 1000 की तादाद में जुमो होंगे, और ये बैल कम से कम 500 की तादाद में होंगे। खशार घोड़े सरकारी राशन ढुलाई के लिए खशार घोड़े भी हज़ारों की तादाद में है। इसकी वजह से देखो वेटरनरी उन्हें दरख्वास्त दे के वो सफ़ेदे के बीच में नज़र आता है, इमारत बना के तकरीबन कोई 10 साल हो रहा है, उसमें बंदे भर्ती नहीं है। हमें इतना ही देखो ये माल मवेशी बीमार हो गया, घोड़े बीमार हो गया, तो इतना मसाइल होता है जो क्या बताऊँगा उसका कहानी आपको। सबसे हमारे लिए यही दरपेश है जो इतने देखो बड़ा गांव में कम से कम हमारे यहाँ लिस्ट में 2000-3000 तक हमारे यहाँ माल मवेशी भैंस वगैरह है, एक डॉक्टर नहीं है। जो हमारे लिए सबसे इसका मसला है जो खुसूसन हमारे घोड़े, इसमें 20 घोड़े हैं जो पंजाबी, जिनका कीमत 12 लाख से 6 लाख तक का है। ठीक, अगर वो भी कोई बीमार हो गया तो हमारे लिए उसको कोई टीका लगाने को भी हमारे पास नर्सिंग नहीं है। जो हमारे सबसे हमारे मसला यही वेटरनरी का मसला है, जो वेटरनरी को कोई नर्सिंग भर्ती हो तो इतना माल। स्कूल में टीचर्स वगैरह पूरे बाहर किधर है जो पूरे नहीं है। इधर देखो ये कॉलेज बना, आप देखो वो बना रहा है, कॉलेज बना रहा है, बना रहा है। और इधर गेरंग का तालीम लेडीज के लिए मिल भी रहा है, बच्ची पढ़ रहा है, मगर वही हाई स्कूल के जो टीचर है हाई स्कूल के टीचर पढ़ रहा है। और हमारा हाई स्कूल भी अब हाई स्कूल के नाम पे है, उसका ये PC4 मंजूर नहीं हुआ है। बंदे है मिडिल का, जो मिडिल का बंदे है वही हाई सेकेंडरी इधर पढ़ा रहे हैं। जो हमारे टीचरों इतना हिम्मत करके है, अब तक हमारा हाई स्कूल भी एक उस पर नहीं हुआ, PC4 पे मंजूर नहीं हुआ है, फिर भी मिडिल का टीचर और वही बंदों ने हाई सेकेंडरी तक इधर स्कूल चला रहा है। बहुत हिम्मत वाले जो हमारे टीचर, मगर बहुत कम है टीचर भी बहुत स्कूल में। ठीक हो गया जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे लिए टाइम निकाला। और बहुत शुक्रिया है जी। बस यहाँ पे सर्दी भी बहुत ज़्यादा है इस वक्त, -13-14 के दरमियान है जी, तो मैं इससे ज़्यादा आपको क्या सुनाऊँ। मुझे दीजिएगा फ्रानू के गाँव से इजाज़त। इंशाल्लाह इसी तरह के वीडियो देखते रहे। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, अपने राय का इजहार कीजिएगा। खुदा हाफिज़।